آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازیوں کے حوالے سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پاک کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی کے حوالے سے آقا مذمت فرما رہے تھے۔ آپ توجہ سے اس واقعے کو سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی جو تو گھر کے اندر موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کے در پر ایک عورت آتی ہے۔ وہ عورت آنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، غور سے آپ اس بات کو سنیں، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، میں تمہاری بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھ سے دو بڑے جرم ہو گئے ہیں، مجھ سے دو بڑے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ سے دو بڑی خطائیں ہو گئی ہیں۔ اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، میں نے توبہ تو کر لیا، میں نے معافی تو مانگ لی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھ گناہگارہ کی شفاعت پیش کر دے، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت ٹھیک ہے، میں تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ جس کے لیے نبی دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت نے جب یہ معروضہ پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں یقیناً تیری بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر دوں گا، لیکن مجھے تیرے گناہ بتا دے کیا ہے، تو نے جو دو گناہ کیے ہیں وہ گناہ کے بارے میں مجھ کو بتا کہ گناہ کیسے تو نے کیے۔ غور سے آپ اس واقعے کو سنیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، بہتر یہ ہوگا کہ آپ میرا گناہ نہ جانیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے وہ دو جرم کیے ہیں کہ یقیناً مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے غیرت آتی ہے کہ میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، میں کیسے آپ کی بارگاہ میں وہ گناہ کا اعتراف کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو گناہ نہیں بتائے گی میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ عورت مجبور ہو گئی، عورت مجبوری کی حالت میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، دراصل ایک معاشرے میں ایک بہت اچھے ماحول میں رہا کرتی تھی، اور وہ اچھے ماحول میں میری پرورش ہوئی، اور میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، میری جوانی کا عالم تھا، اور پورے محلے کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ میری بہت جو تو تعظیم کیا کرتے، مجھ کو بہت میرے ساتھ ادب سے پیش آیا کرتے، میری بہت عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، مجھ پر شیطان اور نفس نے اتنا بہکایا مجھ کو، اور نفس غالب آ گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں مجھ کو نفس نے بہکایا اور کہا، اے نوجوان لڑکی، تو بہت حسینہ اور جمیلہ ہے، کیوں نہ تو کسی لڑکے سے دوستی کر لے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پورا واقعہ پیش کرتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، المختصر، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اس شیطان کے بہکاوے پر، نفس کے بہکاوے پر میں نے ایک نوجوان لڑکے سے محبت کی، اور محبت کے بعد میرے اور اس سے ناجائز تعلقات قائم ہوئے، اور اللہ اکبر، حتیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، نفس مجھ پر اتنا غالب ہو چکا تھا کہ میں نے اس نوجوان لڑکے کے ساتھ زنا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور وہ عورت نے کہ اللہ کے کلیم موسیٰ پورا واقعہ سنے۔ عورت نے کہا کہ جب میں نے اس سے زنا کیا معاذ اللہ، تو زنے کی وجہ سے میرے شکم کے اندر حمل قرار پا گیا، اور جو ہے تو مجھے اب یہ محسوس ہونے لگا کہ چند ہی دنوں میں اب یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ باہر آ جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میری تو معاشرے میں اتنی عزت ہے، میری تو لوگ اتنی تعظیم کرتے ہیں، مجھ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، اگر یہ لوگوں کو میرا عیب معلوم پڑ جائے گا، لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جس کی ہم عزت کرتے ہیں یہ تو بہت بڑی بدکارہ ہے۔ تو اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کہیں جنگل میں چلی جاؤں اور بچے کی ولادت وہیں پر ہو جائے اور بچے کو میں وہیں چھوڑ دوں گی۔ آپ جانتے ہیں عورت نے کہا، اے اللہ کے کلیم، میں جنگل میں چلی گئی رسوائی سے بچنے کے لیے، بے عزتی سے بچنے کے لیے۔ آپ توجہ سے میری باتوں کو سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے عورت کہتی ہے، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، جب میں جنگل میں گئی تو میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب قریب آیا تو مجھے درد ذہ ہونا شروع ہو گیا۔ میں پہاڑی علاقے میں چلی گئی، اور وہاں پر جو زنے سے بچہ قرار پایا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ ناجائز بچہ جو ایک زنے کی وجہ سے دنیا میں آیا تھا، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، جب وہ بچہ پیدا ہوا
तो उस बच्चे को मैंने जंगल में रख दिया और मैं इत्मीनान बख्श हो गई। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मैं माशरे में चली जाऊंगी, मेरी जैसी इज्जत थी मेरी वैसी इज्जत रहेगी। अचानक फिर उसके औरत के दिल में ख्याल आया, मूसा अलैहिस्सलाम से औरत अर्ज करने लगी कि हुजूर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो जंगल से चली जाऊंगी, लेकिन ये बच्चे का क्या होगा। तो शैतान ने आकर मुझको मशवरा दिया और मशवरा देने के बाद कहा, ए औरत एक काम कर, इस बच्चे के सर पे बड़ा पत्थर मार दे। शैतान के मशवरे पर औरत कहती है कि अल्लाह के कलीम मैंने अमल किया और एक बड़ा सा पत्थर उस जिंदा बच्चे पर मारा और उस जिंदा बच्चे को मैंने कत्ल कर दिया। ए अल्लाह के कलीम अलैहिस्सलाम, अभी मुझसे दो बड़े बड़े गुनाह सरजद हो गए। एक तो मैंने जिना किया, आप जानते हैं जिना कितना बदतरीन गुनाह है, जिना कितना गुनाह अजीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानी के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान जिना करने का आदी हो जाता है, अल्लाह करीम उसके चेहरे से नूर को छीन लेता है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को छीन लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र से बरकत को छीन लेता है, उसके चेहरे से नूर को छीन लेता है, मुआशरे से इज्जत को छीन लेता है। हत्ता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानियों के हवाले से फरमाते हैं कि जब दो जानी, एक मर्द और एक औरत, किसी जमीन पर खड़े होकर ये बदकारी करते हैं तो आका फरमाते हैं वो जमीन लरस जाती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मौला मुझे तो इतनी ताकत दे दे कि मैं इन दो जानियों को दबोच लूं, अपने अंदर दबोच लूं। अल्लाह अकबर, जिना बड़ा गुनाह अजीम है, आप जानते हैं जिना बहुत बड़ा गुनाह है। वो औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के कलीम, एक तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह जिना कर लिया, उसके बाद एक मैंने जिंदा बच्चे को कत्ल किया, दो बड़े जुर्म मैंने किए। अब आप यहां से खास तवज्जो से सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ये दो गुनाह, बड़े बड़े गुनाह अजीम, बड़े बड़े जुर्म सुने कि एक तो ये औरत जानिया है और एक तो ये औरत कातिला है। मूसा अलैहिस्सलाम लरस गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत अब तू यहां से चली जा, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तूने जो दो बड़े बड़े गुनाह किए तेरी वजह से अल्लाह की आग ना बरस बचे, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब ना नाजिल हो जाए। औरत रोती रही, मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों को, दामन को थामती रही और पैर पकड़कर अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के कलीम आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको धुतकार दिया और कहा, नहीं तू बहुत बड़ी गुनाहगार है, जल्दी मेरे बारगाह से चली जा, जल्दी मेरे पास से चला जा। अभी वो औरत चली ही गई थी कि अभी रास्ता आधा ही तय हुआ था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के कलीम मूसा, आपने उस औरत की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं की? आपने उस औरत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत क्यों नहीं की? आपने उस औरत को क्यों धुतकार दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सहाबा के दरमियान में बयान फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील क्या तुमने उस औरत का गुनाह ना देखा? वो औरत जानिया है, वो औरत कातिला है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम कि तुमने उससे बड़ी उस औरत से बड़ी गुनाहगार को नहीं देखा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील वो जानिया से बढ़कर, कातिला से बढ़कर भी कोई गुनाहगार हो सकता है? अब आप गौर से सुने, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया, जिब्रील एक जानी औरत से बदतर, एक बदकारा से बदतर, एक कातिला से बदतर भी कोई गुनाहगार, बड़ा गुनाहगार हो सकता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम आप सुने, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस जानिया और इस कातिला औरत से भी बदकार, इस जानिया और कातिला औरत से भी बड़ा गुनाहगार, बड़ा नापसंदीदा वो इंसान है जो जानबूझकर नमाज को कज़ा कर देता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आप गौर तो करें, आप अंदाजा तो लगाए, अगर हम एक बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमारी नमाजें कज़ा है, अगर हमारा शुमार बेनमाजियों की लिस्ट में है, तो बताइए हजरत जिब्रील ने जब अर्ज किया, ऐ अल्लाह के कलीम अल्लाह के नजदीक जानिया औरत से भी बदतर और कातिला औरत से भी बदतर बेनमाजी हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम आज बेनमाजी है तो बताइए हमारी हैसियत और हमारी औकात क्या है? हम बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बेनमाजी जो जमीन पर चलता है, वो जमीन उस बेनमाजी के लिए बददुआ करती है। जमीन के लिए बेनमाजी बोझ हुआ करता है। और यही नहीं, जब बेनमाजी का इंतकाल होता है, नमाज छोड़ने वाले का जब इंतकाल होता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है,
इसलिए कि मरना नमाजी को भी है और मरना बेनमाजी को भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी का इंतकाल होता है और बेनमाजी के क़िराबतदार, बेनमाजी के रिश्तेदार जब बेनमाजी मुसलमान को कब्र के अंदर रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसी बेनमाजी को कब्र में रखा जाता है, बेनमाजी की कब्र में अंधेरा कर दिया जाता है, और जब बेनमाजी की कब्र में अंधेरा होता है तो कब्र जो है तो एकदम डांटते हुए बेनमाजी को झिझोड़ कर उठाती है और डांट डांट कर कहती है, ए बेनमाजी, जब तू मेरे ऊपर चला करता था मैं तुझसे बहुत नफरत किया करती थी, आज तो तू मेरे पास फंस गया, आज तो मैं तेरे से बदला ले लूंगी, आज तो तू मेरे पास है और तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमे में फरमाया कि फिर कब्र क्या करती है? जब बेनमाजी को कब्र में लिटा दिया जाता है तो आप जानते हैं ऊपर भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी। आका फरमाते कि फिर कब्र बेनमाजी को दबोचती है, ऐसा दबोचती है, ऐसा दबोचती है कि आका ने अपने खूबसूरत और मुबारक उंगलियों को इस तरीके से मिला दिया और फरमाया कि ए मेरे साहबा, जब बेनमाजी कब्र में जाता है तो कब्र ऐसा दबोचती है बेनमाजी को कि बेनमाजी की दोनों पसलियां आपस में मिल जाती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अगर हम नमाजों को छोड़ छोड़ कर जिंदगी गुजारते रहे तो मौत का फरिश्ता जो हमारे सर पर मंडरा रहा है, वो मौत का फरिश्ता जो मौत की तलवार लेकर हमारे सर पर हमेशा मंडराता है और ये वक्त में रहता है, ये इंतजार में होता है कि अल्लाह कब मुझे हुक्म दे और कब मैं इसकी रूह कब्ज करूं। आप जानते हैं मरना आपको भी है, मरना हमको भी है, हर इंसान को मरना है, नमाजी को भी मरना है, बेनमाजी को भी मरना है। लेकिन जब नमाजी की मौत होती है तो कब्र नमाजी की जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, और जब बेनमाजी की मौत होती है तो आप जानते हैं कि बेनमाजी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। अब ये हम पर डिपेंड है, अभी हमारे को जो हमारे ऊपर छोड़ा गया, हम चाहे तो नमाजी बनकर जिंदगी गुजारे, हम चाहे तो बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारे। अगर हम बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा हाल अभी मैंने आपके सामने बयान किया, और नमाजी बन के जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी दुनिया के अंदर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हमारे अहले सुन्नत के नौजवानों को यही पैगाम दे रही है, क्योंकि अक्सरियत जो है तो बेनमाजियों में अहले सुन्नत के हमारे नौजवानों की है। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि नमाजों की पाबंदी करें। नमाज एक मुसलमान पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा फरीजा है। नमाज के बाद सारे काम है, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। हमको नमाज की पाबंदी करना चाहिए। यकीनन अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि मौला ताला सबसे पहले मुझे नमाज की पाबंदी की तौफीक दे, उसके बाद आप तमाम हज़रात को नमाज की पाबंदी की तौफीक दे। जाने अनजाने में अगर मुझसे शरन किसी किस्म की गलती हो तो आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। भी आप नमाज के हवाले से चंद हदीस सुन रहे थे।